Financial statements of not-for-profit organizations from T.S. Grewal's textbook, which is chapter 1 for class 12th accountancy. और अभी हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर. सो क्वेश्चन नंबर 20. From the following particulars, calculate amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. Subscription in arrears on 31st March 2019 is 500, that is opening outstanding. Subscription received in advance on 31st March 2019 for the year ended 31st March 2020 is 1100, which is opening advance. Now, total subscription received during the year ended 31st March 2020, including rupees 400 for the year ended 31st March 2019 and rupees 1200 for the year ended 31st March 2021 and rupees 300 for the year ended 31st March 2022. यहाँ इस बात को समझना ज़रूरी है कि साल भर में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 35,400, जिसमें से 400 रुपीज़ तो पिछले साल का है. इस 500 में से 400 रुपीज़ मिला है, सो ये 400 को लेस कर देंगे. और फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है हमें 1200 रुपीज़ का अगले साल का, वो भी लेस कर देंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है. और 300 रुपीज़ भी एडवांस सब्सक्रिप्शन है, वो नेक्स्ट ईयर के बाद के नेक्स्ट ईयर का है, तो उसे भी लेस कर देंगे. नाउ तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया है क्योंकि ये 400 इस 500 का ही हिस्सा है. और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये पिछले साल का एडवांस है, तो ये जुड़ेगा. 1100 रुपीज़ को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर जो एडवांस मिला था वो था इस करंट ईयर का. देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, दैट इज़ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इसको भी ऐड कर देंगे. सो लेट अस सी इट इन द टेबुलर फॉर्म. सो सॉल्यूशन 20, calculation of subscription for the year ended 31st March 2020. Point A, subscription received. Subscription received. मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में कितना रुपए रिसीव किए हैं हम वो लिख रहे हैं. सबसे पहले 35,400. नाउ इस 35,400 में 400 रुपीज़ जो है वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. सो वी विल सब्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, जो कि 31st मार्च 2019 से रिलेटेड है. So we will subtract 400 rupees. Then we will also subtract advance subscription. Advance subscription closing है जो कि 31st मार्च 2021 और 31st मार्च 2022 से रिलेटेड है. सो 2021 का है अमाउंट जो 1200 और 300, सो 1500 वी विल सब्ट्रैक्ट. देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वी विल ऐड. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये नहीं है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग, that is on 31st March 2020. It will be added and that is 400. एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि है ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन. that is 1100. Now when we add we get the total 35,000. This 35,000 is the total subscription for the year. Now let us see the next question. Question number 21.
How are the following items of subscription shown in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as at 31st March 2019 and 20? So we have to calculate the total amount of subscription for the year and show it in income and expenditure account. Also, we have to show these information in the opening balance sheet and in the closing balance sheet. So what are the information? Subscription received during the year 3,58,500. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये ओपनिंग है 30,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये भी ओपनिंग डेट का है 22,500. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये क्लोजिंग डेट का है 13,500. एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2020 ये भी क्लोजिंग है 37,500. Now this 37,500 including 12,500 for the year ended 31st March 2019. मतलब कि 31st March 2019 को जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 30,000 उसमें से 12,500 अभी भी नहीं मिला है. मतलब ये जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है उसमें से कितना रुपीज़ मिला है वो है 30,000 minus 12,500. It means it is 17,500. This is included in total subscription received. क्योंकि 12,500 तो अभी भी मिलना बाकी है जो कि क्लोजिंग में लिखा हुआ है. So let us see the tabular representation of calculation of subscription for the current year. Now solution 21. So subscription received during the year. Subscription received as per receipt and payment account. How much? 3,58,500. परंतु ये सब्सक्रिप्शन जो है वो 31st March 2020 को ख़त्म होने वाले साल का नहीं है. इसमें बहुत सारा ऐसा भी पैसा है जो लास्ट ईयर से रिलेटेड है और कुछ पैसे ऐसे भी हैं जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है और कुछ पैसे ऐसे भी हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसे भी हैं जो इस साल के हैं लेकिन वो मिले नहीं हैं तो इसमें तो हो ही नहीं सकते. सो दैट इज़ द ट्रीटमेंट विच वी हैव टू डू. सो फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2019 मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. आउटस्टैंडिंग ओपनिंग इसलिए है ओपनिंग बैलेंस बिकॉज इट इज़ ऑन 31st 3/19. अब यहाँ पर कह रहा है कि 30,000 रुपीज़ जो है लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिला तो 30,000 रुपीज़ इस साल मिलना चाहिए जो इसमें शामिल होना चाहिए, इंक्लूडेड होना चाहिए. लेकिन लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि 31st March 2019 से रिलेटेड जो कि 30,000 है, 30,000 था उसमें से अभी तक आउटस्टैंडिंग है 12,500. 12,500 अभी भी नहीं मिला है. मतलब कितना मिला है? 17,500 मिला. तो ये 17,500 इस अमाउंट में इंक्लूडेड है जिसको हम लेस कर देंगे. सो सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,500 लेस होगा, ना कि पूरा का पूरा 30,000, क्योंकि इसमें से 30,000 में से अभी भी 12,500 नहीं मिला है. तो ये वाला अमाउंट इसके अंदर है ही नहीं, इसलिए 17,500 ही लेस होगा. देन नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. सो एडवांस सब्सक्रिप्शन और इसका डेट दिया हुआ है 31st 3/19. मतलब ये ओपनिंग एडवांस है क्योंकि लास्ट ईयर मिला था. अगर लास्ट ईयर मिला है सब्सक्रिप्शन एडवांस में तो वो है तो इसी फाइनेंशियल ईयर का. एज अ रिजल्ट 22,500 वी विल ऐड. देन नेक्स्ट इज एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द क्लोजिंग डेट, वो लेस होगा. इसी का उल्टा एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31st March 2020. तो ये क्लोजिंग हो गया. इसका मतलब ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर में अगर एडवांस मिला है तो वो इस ईयर का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है. सो एज अ रिजल्ट 13,500 हम लेस कर देंगे.
Then lastly, outstanding subscription. So subscription outstanding. Subscription outstanding closing. इसमें कह रहा है 37,500 है, बट 31 मार्च 2019 से रिलेटेड कितना है 12,500. ये यही वाला अमाउंट है, वो इस साल का नहीं है, तो इसमें 25,000 ही है जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर का है. तो एज अ रिजल्ट 25,000 रुपीज़ हम ऐड करेंगे. नाउ वी विल गेट एन अमाउंट, फाइनल अमाउंट which is 3,75,000, and this is the subscription, total subscription for the current financial year. And this will be reflected in income and expenditure account. So that is the answer. So now we will prepare income and expenditure account and also the opening and the closing balance sheets. So let us see. So in the books of NPO, income and expenditure account, extract. So because subscription is an income, so it will be shown on the credit side because it's a nominal account. Debit all expenses and credit all incomes and gains. So by subscription, 3,75,000. Now opening balance sheet. इन ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखना है हमको? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन. सो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है बिकॉज ये 31 मार्च 2019 का है. सो यहाँ लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन. एडवांस सब्सक्रिप्शन वो भी ओपनिंग. सो एडवांस सब्सक्रिप्शन इज 22,500. दिस इज ऑल्सो एन एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट मतलब एक पोर्शन ही बस दिखाएंगे. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन एसेट. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज़ 30,000. सो पूरा 30,000 दिखाएंगे. हालांकि इसमें से हमें 12,500 अगले साल नहीं मिलेगा, लेकिन इस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो 30,000 ही है. सो दैट्स इट. अब देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट फॉर द फाइनेंशियल ईयर. एडवांस सब्सक्रिप्शन. एडवांस सब्सक्रिप्शन इज ऑलवेज अ लायबिलिटी. So how much is advance subscription? 13,500. And outstanding subscription. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में दो सालों का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है. एक है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और एक है 31 मार्च 2020. दोनों को ही हम डिटेल में शो करते हैं. सो आउट ऑफ दिस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी भी 12,500 मिलना बाकी है, और इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 25,000. सो टोटल इज 37,500. So this is how the information will be shown in the balance sheet. This balance sheet is also an extract. Now let us see question number 22. From the following information, calculate amount of subscription outstanding for the year ended 31st March 2020. A club has 200 members, each paying an annual subscription of rupees 1,000. So what should be the total subscription? 200 multiplied by 1,000, that is 2 lakh. और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड. सो दैट इज द टोटल सब्सक्रिप्शन 2 lakh. देन द receipt and payment account for the year showed a sum of rupees 2,05,000 received as subscription. The following additional information is provided.
Subscription outstanding opening is 30,000. Subscription received in advance closing is 40,000, and subscription received in advance opening is 14,000. So let us calculate the outstanding subscription for the year. Now solution 22, subscription received. In receipt and payment account. $2,05,000. Then outstanding subscription. Opening. It means opening date का outstanding subscription पिछले साल का. We have to calculate closing outstanding subscription. लेकिन पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिला वो इस साल मिला होगा, तो इसी में शामिल है 2,05,000 में, तो लेस कर देंगे बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर. देन एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग. क्लोजिंग बिकॉज 31/3/20 को मिला है, तो इसी साल मिला हुआ है, मतलब ये रिलेटेड है लास्ट ईयर से, नेक्स्ट ईयर से, इसलिए इसे भी लेस करेंगे बिकॉज एडवांस रिसीव्ड दिस ईयर इज़ फॉर नेक्स्ट ईयर, सो इट इज़ नॉट फॉर दिस ईयर. लेकिन प्लस होगा पिछले साल जो एडवांस मिला था. पिछले साल जो एडवांस मिला था दैट इज़ ओपनिंग, that is related to this year, and that is 14,000. So this is equal to 1,49,000. इसका मतलब यह है कि सब्सक्रिप्शन आउट ऑफ 2,05,000, 1,49,000 is for this year. So subscription received for the year is this much, but we know that subscription कितना मिलना चाहिए था, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए था, टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर इज इक्वल टू, वी आर हैविंग 200 मेंबर्स और हर मेंबर को 1,000 रुपीज़ देना है. इट मीन्स 2 लाख रुपीज़ मिलना चाहिए था, 2 लाख रुपीज़ मिलना चाहिए था और हमें मिला है 1,49,000 ही मिला है. 2,05,000 हालांकि मिला है, लेकिन उसमें ये सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट होगा क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है. तो इस साल का कितना है इस पैसे में, 1,49,000 है, जबकि हमें मिलना चाहिए था 2 लाख. सो 51,000 जो हमें नहीं मिला, जो आंसर माइनस में आ रहा है, दैट इज़ द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग. on closing date, that is on 31st March 2020. So this is your answer. Let us see the next question. Question number 23. From the following information, prepare subscription account for the year ending 31st March 2020. Now tabular calculation नहीं करना है, अब हमें ledger बनाना है. Subscription in arrears, this is opening outstanding, or this is closing. And subscription in advance, this is opening advance and this is closing advance. In the year ending 31st March 2020, subscription received were rupees 2,10,000, including rupees 6,000 of arrears from the previous year. इस 2,10,000 में 6,000 जो है वो opening outstanding से related है. And subscription arrears of previous year were written off 4,000. Now इसी 20,000 में से 4,000 का पक्का हो गया कि वो नहीं मिलेगा, इसलिए उसे हमने खारिज कर दिया, निकाल दिया, हटा दिया. एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि वो हमें सब्सक्रिप्शन मिलेगा. सो लेट अस सी इट इन द लेजर. नाउ सॉल्यूशन 23.
क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड, हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31/3/20। नाउ सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। नाउ सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का मतलब है कि पिछले साल जो नहीं मिला सब्सक्रिप्शन, तो मतलब क्या है कि वो एक एसेट है। एसेट है मतलब वो डेबिट बैलेंस में आएगा। सो ऑन विच डेट इट इज़ 1/4/19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज़ हाउ मच 20,000। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, एरियर्स ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इस तरफ है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में आना चाहिए 31/3/20। सो बाय बैलेंस क्लोज डाउन, दैट इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, इट इज 18,000। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है। सो इधर लिखेंगे इसको 1/4/19 को बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, इट इज़ 13,000। तो क्लोजिंग इधर लिखना पड़ेगा अपन को, क्रेडिट के साइड, डेबिट के साइड। सो ऑन 31/3/20 टू एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग, दैट इज़ 11,000। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि साल भर के दौरान सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वो 2,10,000 था। सो 31/3/20 बाय बैंक, दैट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो मिला वो है 2,10,000। 2,10,000। नाउ अब यहाँ एक चीज़ लिखा है और लिखा हुआ है कि 6,000 रुपीज़ एरियर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर। आउट ऑफ दिस 2,10,000 जिसमें 6,000 रुपीज़ इस 20,000 का भी इंक्लूडेड है, और बाकी का 14,000 नहीं मिला है, वो 14,000 इसी में शामिल है। मतलब ये कितना है, 14,000 फॉर लास्ट ईयर एंड 4,000 फॉर दिस ईयर, ये मिला करके है यहाँ। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4,000 का जो सब्सक्रिप्शन है वो अब मिलेगा ही नहीं। सो ऑन 31/3/20 बाय लॉस, इट इज़ 4,000, ये मिलेगा ही नहीं, बैड हो गया। नाउ द बैलेंसिंग फिगर वी विल मेंटेन नाउ, दिस साइड ग्रैंड टोटल इज हाउ मच, 2,45,000। To get a balancing figure of 2 lakh total figure of 2,45,000, we have to insert an amount. So this will be to income and expenditure account, which will come out to be 2,14,000. So that is the solution. 2,14,000 ही साल भर का सब्सक्रिप्शन है। ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही जाएगा। Let us see question number 24. Calculate the amount of subscription which will be treated as income for the year ended 31st March 2020 for each of the following cases. अब सारे 5 केसेस को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। Let us discuss case 1 फर्स्ट। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन आया 2,50,000 का। देन सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन द क्लोजिंग डेट, मतलब ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021, मतलब ये क्लोजिंग एडवांस है। सो 6,000 को ऐड करना है और 5,000 को सबट्रैक्ट करना है। So this question is very objective type question and we can solve it in the textbook itself. So let us see, this 6,000 will be added because it is outstanding, closing outstanding, and this is closing advance, so it will be subtracted, and the answer is 2,51,000. So it will go to income and expenditure account. This is the subscription for the year and this is receipt and payment account. Now here subscription collected during the year in receipt and payment account is 49,000
and subscription for the year ended 31st March 2020 collected in the year means it is opening advance, so it has to be added to this. Then subscription unpaid closing outstanding, so again it has to be added. Now the answer is 54,000 in income and expenditure account. Now similarly case 3, subscription received in receipt and payment account is 2 lakh is 25,000 and subscription outstanding in the beginning of the year, it means it is opening outstanding, so minus, and subscription not yet collected on the closing date, it is closing outstanding, so it is to be added, and the answer is 27,000. Then subscription received in receipt and payment account is 80,000, subscription outstanding in the beginning of the year, that is opening outstanding, so we have to subtract it. Then subscription not yet collected, it is closing outstanding, so it is to be added. Then subscription received in advance, closing advance, so it is again to be subtracted, and the answer is 81,000. And lastly, subscription received in income and receipt and payment account is 90,000, subscription outstanding at the end of the last year, that is opening outstanding, so we will subtract it. Then subscription received in advance, that is opening advance, so it is for this current year, ये प्लस हो जाएगा. And subscription received in advance on the closing date, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये अगले साल से रिलेटेड है. एंड सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट येट कलेक्टेड, मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा हमारा 90,000. सो दैट वाज अ वेरी सिंपल थिंग टू डू, एंड इसको टेबल फॉर्म में भी बना सकते हैं और लेजर फॉर्म में भी बना सकते हैं. आई होप you have understood the concept very well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. If you have not purchased class 12th accountancy textbook of T.S. Gerewal, then I am providing the link for it in the description box from where you can purchase the textbooks. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.